بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام آؤ بچوں سیکھنے کچھ آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہیں بچوں کی پیارے بچوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے۔ تو اب ہم پہلے سیگمنٹ طرف بڑھنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں۔ انشاءاللہ عز و جل درود پاک کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بچوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ پاک نے تمام جہان پیدا کیے۔ شاعر کیا خوب فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العظیم۔
سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ غفران بھائی آپ نے بہت ہی پیارے انداز میں ہمیں تلاوت قرآن پاک سنائی۔ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے اور وہاں پہ بھی آپ کو قرآن پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلم علیک یا حبیب اللہ، عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا۔ تیری معراج، تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، آقا میری معراج میں تیرے قدم تک پہنچا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے ختم رسل، اے ختم رسل، مکی مدنی، اے ختم رسل، مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل، مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسل۔ اوصاف تو سب نے پائے گے، اوصاف تو سب نے پائے گے، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسل۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو،
محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ شاہ ہر دوسرا آمینہ کا لاڈلا ہے حبیب کبریا ہے شفیع الورا آسیوں کا آسرا اعتقاد فاطمہ ہے یقین عائشہ عقیدہ سب صحابہ کا عقیدہ اہل بیت کا عقیدہ غوث پاک کا بچہ بچہ بال اٹھا ہے عقیدہ رضا نعرہ اختار کا سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی اللہ پاک آپ کی آواز میں اور برکت عطا فرمائے اور بار بار میٹھے مدینے کی حاضر نصیب فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ابھی بہت انٹرسٹنگ سیگمنٹ کا ٹائم ہوا ہے جس کا نام ہے کہانی۔ بچوں کی شان بچوں کی شان پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آج ہم ایک کہانی سننے والے ہیں۔ کہانی بڑی مزیدار ہے اور ہاں ہمیں اس کہانی سے سبق یعنی لیسن بھی ملے گا جسے ہمیں یاد بھی رکھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو بچوں چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پیارے بچوں ایک جنگل میں اونٹ یعنی کیمل اور گیدڑ یعنی جیکل رہتے تھے اور ان کی آپس میں دوستی تھی۔ ایک دن گیدڑ اونٹ کے پاس آ کر کہنے لگا، دوست ساتھ والے گاؤں میں تربوز یعنی واٹر میلن کے کھیت ہیں، آؤ مل کر کھاتے ہیں۔ اونٹ اپنے دوست کی بات مان گیا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر یہ دونوں تربوز کھانے میں مصروف ہو گئے۔ اب گیدڑ تربوز کھانے کے بعد شور مچانے لگا اور شور کی آواز سن کر کھیت کا مالک وہاں آ پہنچا۔ گیدڑ تو بھاگ گیا مگر اونٹ نہ بھاگ سکا۔ گیدڑ تو بھاگ گیا یعنی اونٹ نہ بھاگ سکا اور مالک کے ہاتھ آ گیا جس کی وجہ سے اسے بہت مار کھانی پڑی۔ کچھ دیر بعد جب دونوں ملے تو اونٹ نے ناراض ہوتے ہوئے گیدڑ سے کہا، تم نے یہ کیا حرکت کی تھی؟ تمہاری وجہ سے مجھے بہت مار کھانی پڑی۔ گیدڑ چالاکی سے کہنے لگا، کیا کروں؟ میں مجبور تھا کیونکہ میری عادت ہے کہ تربوز کھا کر شور مچاتا ہوں۔ اس کی بات سن کر اونٹ خاموش ہو گیا۔ پھر ہوا کچھ اس طرح کہ یہ دونوں شام میں واپس جنگل کی طرف چل پڑے۔ جب راستے میں نہر یعنی کینل آئی تو گیدڑ اونٹ کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ جب دونوں نہر کے بیچ میں پہنچے تو اونٹ نہر میں بیٹھنے لگا۔ گیدڑ چیختے ہوئے کہا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا کہا؟ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس طرح تو میں ڈوب جاؤں گا۔ اونٹ بولا، بھائی میری بھی عادت ہے کہ تربوز کھانے کے بعد کچھ دیر پانی میں بیٹھتا ہوں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کسی کو دھوکہ دینا اچھی بات نہیں ہے۔ اگر آج ہم کسی کے ساتھ دھوکہ کریں گے تو کل کو ہمارے ساتھ بھی کوئی دھوکہ کر سکتا ہے، کیونکہ جیسی کرنی ویسی بننی۔ تو ہمیں دھوکہ کسی کے ساتھ نہیں کرنا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنے والا بنائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ تو پیارے بچوں کہانی غور سے سنیے، سوال کر لو، کون کون سے جانور کا ذکر ہوا اس کہانی میں؟ اونٹ اور گیدڑ کا۔ اونٹ اور گیدڑ، آپ کا جواب درست ہے۔ پیارے بچوں گیدڑ اور اونٹ کیا کھانے گئے تھے؟ سارے مل کے بتا دیں۔ واٹر میلن یعنی تربوز کھانے گئے تھے۔ پھر کیا ہوا تھا یہ کون بتائے گا؟ اس کا ہاتھ کھڑا کریں۔ پھر کیا ہوا تھا؟ جی آپ بتا۔ گیدڑ شور مچانے لگا۔ پھر کیوں شور مچایا گیدڑ نے؟ گیدڑ شور مچانے لگا اتنے میں کھیت کا مالک آ گیا اور گیدڑ تو بھاگ گیا لیکن اونٹ نہ بھاگ سکا۔ تو پھر اونٹ نے مار کھا لی۔ تو گیدڑ کیوں چیخ رہا تھا؟ کوئی ریزن تو ہوگا نا اس کا؟ جی بتائیں، آپ ہی بتائیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں جب بھی تربوز کھاتا ہوں تو میں چیختا ہوں۔ جی ہاں، جب بھی میں تربوز کھاتا ہوں تو چیختا ہوں۔ پھر اونٹ نے بھی اسی طرح کیا کہ جب نہر کے پاس گزر رہے تھے نہر کے پاس سے تو پھر اونٹ بھی نہر میں چلا گیا اور
بیٹھنے لگا تو پھر بھی کدھر نے شور کیا کہ میں تو ڈوب جاؤں گا. تو ہمیں کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے. پیارے بچوں اور کڈس مت چل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کنیز فاطمہ. بچوں کی شان، بچوں کی شان، کنیز فاطمہ اچھی بچی ہے، سچی ہے، سب کے کام یہ آتی ہے. واہ بھائی، اچھی باتیں سکھاتی ہے. واہ، چھوٹے منہ سے بات بڑی یہ اکثر کر جاتی ہے. کتنی اچھی بچی ہے، بہت اچھی ہے، میں یہ سچی ہے. کوئی غلط کرتا ہے کچھ. ارے ختیجہ، جی ابھی. ارے ختیجہ، آپ کو بہت زیادہ نیند آ رہی ہے. ایسا کریں آپ تھوڑا آرام کر لیں، رات میں یاد کر لیجئے گا. نہیں آپی، کل ٹیسٹ ہے، مجھے ابھی یہ 2 چیپٹر اور یاد کرنے ہیں. ختیجہ، آپ تو نیند سے اونگ رہی ہے، اس طرح تو آپ کو کچھ یاد ہی نہیں ہوگا. آپ بھی صحیح کہہ رہی ہے، آپ جا کر سو جائیں. جی، پہلے تھوڑی نیند پوری کر لیں، پھر اٹھ کر یاد کر لیجئے گا. چلیں پھر میں اپنی باقی تیاری گھر جا کے کر لوں گی. ابھی آپ سو جائیں، ہم لوگ بھی چلتے ہیں. ٹھیک ہے پھر، انشاءاللہ کل اسکول میں ملتے ہیں. انشاءاللہ. کنیز فاطمہ اچھی بچی، کنیز فاطمہ اچھی بچی ہے، سچی ہے، سب کے کام یہ آتی ہے. واہ بھائی، اچھی باتیں سکھاتی ہے. واہ، چھوٹے منہ سے بات بڑی یہ اکثر کر جاتی ہے. کتنی اچھی بچی ہے، بہت اچھی ہے، میں یہ سچی ہے. کوئی غلط کرتا ہے کچھ تو یہ اسے سمجھاتی ہے. کنیز فاطمہ. ٹینشن کی وجہ سے نیند ہی نہیں آ رہی. ابھی 2 چیپٹر یاد کرنے باقی ہیں. نیند نہیں آ رہی تو یاد ہی کر رہی ہوں. کنیز فاطمہ اچھی بچی، کنیز فاطمہ اچھی بچی ہے، سچی ہے، سب کے کام یہ آتی ہے. واہ بھائی، اچھی باتیں سکھاتی ہے. واہ، چھوٹے منہ سے بات بڑی یہ اکثر. آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ میں تو سمجھی تھی کہ لائٹ آف کرنا بھول گئی، لیکن آپ تو آرام کرنے کے بجائے یہاں پر بیٹھ کر پڑھ رہی ہیں. آپی، کل ٹیسٹ ہے نا. لیکن ختیجہ، اس طرح آپ سبق ہی یاد کرتی رہیں گی اور آرام نہیں کریں گی تو بیمار بھی ہو سکتی ہیں. نیند صحت کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. چلے ابھی سو جائیں، صبح فجر کی نماز پڑھ کر یاد کرنے بیٹھ جائیے گا. نہیں آپی، مجھے ٹینشن کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی، اس لیے یاد کرنے بیٹھ گئی ہوں. ارے آپ کو تو بخار ہو رہا ہے، چلیں اٹھے اور سو جائیں، ورنہ آرام نہ کرنے کی وجہ سے آپ اور بیمار پڑ جائیں گی. نہیں آپی، کل ٹیسٹ ہے. ختیجہ میری بہن، یہ صحیح بات ہے کہ پڑھائی بہت ضروری ہے، لیکن اس سے بھی ضروری چیز انسان کی صحت ہوتی ہے. آپ نے اس ٹیسٹ کا اتنا اسٹریس لے لیا ہے کہ آپ کو نیند ہی نہیں آ رہی، اور اسی اسٹریس کی وجہ سے آپ کو بخار چڑھ گیا. میں ابھی جا کر مما کو بتاتی ہوں اور ان سے کہتی ہوں کہ کل آپ کو اسکول کے لیے نہ اٹھائیں. نہیں آپی، کل کا ٹیسٹ اگر مس ہو گیا تو ٹیچر بہت ڈانٹیں گی. کچھ نہیں ہوگا، بابا جان جا کر اسکول میں بات کر لیں گے. آپ آرام کریں. چلیں شاباش. لیکن آپی. نہیں، بس آپ آرام کریں. اتنی محنت سے سب یاد کیا تھا اور ٹیسٹ کے دن ہی بیمار پڑ گئی. مجھے نیند پوری کرنی چاہیے تھی. کوئی بات نہیں ختیجہ، اتنا اداس مت ہو. اب جب بھی ٹیسٹ ہو تو ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ پراپر آرام بھی کیجیے گا. جی انشاءاللہ. ختیجہ، آپ کے لیے خوشخبری ہے، آج جو ٹیسٹ ہونا تھا وہ نہیں ہوا، اب کل ہوگا. اس طرح ہمیں ایک اور دن بھی مل گیا اور آپ کا ٹیسٹ بھی مس نہیں ہوا. ارے واہ، یہ تو بہت اچھا ہو گیا. چلے پھر میں اپنی بک لے کے آتی ہوں. آپ ہی سنا آپ نے، میرا ٹیسٹ مس نہیں ہوا. دیکھیے گا میں ٹیسٹ میں سب سے زیادہ نمبر لے کے آؤں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ میری بہن. دیکھا آپ نے، جو ہوتا ہے ہمارے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے. اس ٹیسٹ کی ٹینشن میں آپ نے اپنی پوری نیند نہیں کی تھی، اور اگر آج بھی آپ آرام کیے بغیر اسکول چلی جاتی تو ٹیسٹ بھی نہیں ہوتا
और आपको रेस्ट करने का मौका भी नहीं मिलता। आप कल स्कूल जाकर आराम से टेस्ट दे दीजिएगा। जी इंशाअल्लाह आपी। प्यारी बच्चियों, पढ़ाई बहुत जरूरी चीज है, लेकिन इसका इतना भी प्रेशर नहीं लेना चाहिए कि आप अपनी सेहत और नींद का ख्याल भी ना रख सकें। पढ़ाई को जहन में रखें, लेकिन जहन पर सवार ना करें। बच्चों की शान, बच्चों की शान। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है आए दुआ याद करते हैं। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम जो दुआ सीखने वाले हैं वो बुलंदी पर चढ़ने की दुआ है। कहाँ चढ़ने की दुआ है? जी चलिए आपको याद करवाते हैं, पढ़िए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। किस किस को याद है? बाज़ बच्चे अकबर पढ़ रहे हैं, अकबर नहीं है, अल्लाहु अकबर है। क्या है? आपसे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जी अपने बराबर में दें। अल्लाहु अकबर, अकबर नहीं है अकबर पढ़। जी, अकबर है। फिर से अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक और ले लेते हैं जी, छोटे मदनी मुन्ने ने हाथ उठाया, इन्हें दें। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। जी माशाल्लाह, यहाँ पे बच्चों को याद हो गई है। तब हम चलते हैं तर्जुमे की तरफ। तर्जमा। अल्लाह पाक सबसे बड़ा है, 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 अल्लाह पाक सबसे बड़ा है। किस किस को याद हो गया? सबको याद हो गया? एक बार सारे मिलके सुनाएं। ये किसका तर्जुमा है? जी बुलंदी पर चढ़ने की दुआ कौन सी है? अल्लाहु अकबर। और इसका तर्जुमा? माशाल्लाह, सबको याद हो गई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे प्रोग्राम में अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मदीने की हाजिर नसीब फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है वर्ल्ड मैप और मैग्नेटिक वॉल। बच्चों की शान, बच्चों की शान। तो आज किसको बुलाएं? मोहम्मद मामून आए। मैग्नेट उठाए वहां से, थोड़ा सा पीछे आए। अब मैग्नेट थ्रो कर दें। जी हाँ, इस्लामाबाद पे मैग्नेट आ चुका है और इस शहर में जो बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में कुछ बताएंगे वो हमारे साहब भाई हैं। साहब भाई जी, इस्लामाबाद पे आया है मैग्नेट, तो आप कुछ बताएं हमें। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मशहूर वलीउल्लाह इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है। आप 1062 हिजरी में चकवाल में पैदा हुए। आपका असल नाम शाह अब्दुल लतीफ़ है, जबकि आप इमाम बरी के लक़ब से मशहूर हैं। आपने कश्मीर, बगदाद, मिस्र, दमिश्क और इनके अलावा कई मुल्कों में सफ़र किया। आपने अपनी ज़िंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक गुजारी। आपने कई काफिरों को इस्लाम की दावत देकर इन्हें मुसलमान किया है। आपका इंतकाल 1117 हिजरी में हुआ। आपका मज़ार इस्लामाबाद में है, जहां लोग बरकतें हासिल करने के लिए आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक इन बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह पर अपनी रहमत का नुज़ूल फरमाए, आमीन। आपका बहुत शुक्रिया साहब भाई कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मदीने की हाजिर नसीब फरमाए। तो प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सिविक सेंस। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज के हमारे सेगमेंट सिविक सेंस में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है अपने से बड़ों, ख़वातीन, बच्चों और माजूरों को तरजीह देना। हमें सबसे पहला काम जो सिविक सेंस सिखाती है वो है आपस में बातचीत करना और एक दूसरे से इखलाक से पेश आना, यानी अपने बड़ों से किस तरह से पेश आना है, अपने छोटों से किस तरह पेश आना है, और अगर माजूर अफराद हो तो उनसे कैसे पेश आना है। ये सब एक बहुत जरूरी और अहम जिम्मेदारी है जिसे हम सब ने मिलकर निभाना है। प्यारे बच्चों, हम सब इस दुनिया में
एक साथ मिलजुल कर आराम से रहते हैं। हमारे गली मोहल्ले में कई तरह के लोग होते हैं, बूढ़े, जवान, बच्चे वगैरह। ये सब लोग इंसान हैं और हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। आज के सिविक सेंस में हम आपको जिम्मेदारी के बारे में बताएंगे, जो बड़ों, बच्चों, खवातीन और माजूर अफराद की इज्जत और एहतराम के बारे में है। आपको चाहिए कि आप इंतजार करें उस वक्त तक के जब तक के बड़े आपस में बात मुकम्मल कर लें, फिर आप बात करें। ज्यादातर जो हमारे घरों में बूढ़े लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात ही नहीं करते। अगर घर में दादा दादी, नाना नानी है तो हम उनके पास ही नहीं बैठते। अगर वो कुछ काम कह दें तो हम सुनते ही नहीं और उन्हें वो काम करके भी नहीं देते। सबसे पहले तो हमें उनके लिए वक्त निकालने की जरूरत है। जैसे आप मदरसे, नमाज, कुरान पाक सीखने के लिए वक्त निकालते हैं, ठीक उसी तरह घर में मौजूद बड़ों के पास बैठे, उनसे बातें करें, उनकी बातें सुने, उनसे सवाल करें और अच्छा वक्त गुजारें। बड़ों के साथ हुस्न सलूक यानी अच्छा सलूक करो, यानी उनकी इज्जत करो, उनके एहतराम में अपनी जगह छोड़ दो और उन्हें पेश करो। बूढ़े अगर चल नहीं पा रहे तो उन्हें सहारा दें। अगर रोड पार कर रहे हो तो हाथ पकड़कर उनकी मदद करें। खवातीन भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, जिनका एहतराम और इज्जत हम सब पर फर्ज है। खवातीन की इज्जत बिल्कुल वैसी ही करनी चाहिए जैसे आप अपने घर में मौजूद माँ और बहन की करते हैं। ये रिश्ते अल्लाह पाक ने बनाए हैं। प्यारे बच्चों, घर का सबसे अहम फर्द होती है खातून, जो पूरे घर के कामकाज और देखभाल में मेहनत करती हैं। सुबह के नाश्ते से रात सोने तक सबसे ज्यादा घर में खवातीन ही काम करती हैं। इन सब की हमें इज्जत करनी चाहिए। इसी तरह बच्चे भी होते हैं। बच्चे हमेशा अपने जहन में मौजूद काम कर रहे होते हैं या खेल कूद रहे होते हैं। बच्चे आपस में खेलते खेलते लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि लड़ने से एक दूसरे को चोट लग जाएगी। फिर अम्मी अब्बू को फिक्र रहेगी हर वक्त कि हमारा बच्चा कहीं बाहर लड़ तो नहीं रहा, किसी को तंग तो नहीं कर रहा। सारे बच्चों को चाहिए कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें और एक दूसरे की बात गौर से सुने और गलती हो जाए तो उसे मुआफ कर दें। अगर बड़ा बच्चा छोटे बच्चों को किसी बात से मना करे तो ये देखना चाहिए कि वो किस बात पर मना कर रहा है। हो सकता है कि वो बात सही कर रहे हो। हर बात में अच्छा बर्ताव करना ही सिविक सेंस है। माजूर अफराद भी हमारी सोसाइटी में रहते हैं। कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता। माजूर अफराद भी हमारी तरह इंसान हैं। हमें माजूर अफराद के साथ बहुत नरमी से पेश आना चाहिए। कुछ बच्चे माजूर अफराद को देखकर उन्हें तंग करना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर किसी की टांग नहीं तो बच्चे उनसे दौड़ लगाने की बातें करके उस बच्चे को तंग करते हैं। अगर किसी बच्चे की आंखें टेढ़ी है तो आंखों के बारे में मजाक करते हैं, या यूं कह ले कि माजूर इंसान की माजूरी का मजाक उड़ाते हैं, जो सख्त गुज़ा का काम है। माजूर अगर कोई खड़ा है तो पहले उसे मौका दें, अगर व्हील चेयर पर है तो उसकी मदद करें और सबसे अहम के अच्छे इखलाक से पेश आएं। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है आए अरबी सीखे हैं। बच्चों की शान, बच्चों की शान। जी तो प्यारे बच्चों, आज भी हम 3 चीज़ों के नाम अरबी में सुनेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप उसे याद भी रखें और इन्हें गौर से सुनें ताकि हम आखिर में आपसे सवाल भी कर सकें। तो प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आज के वर्ड्स की तरफ और देखते हैं आज के हमारे 3 वर्ड्स कौन कौन से हैं। जी दिखाई। ये क्या है प्यारे बच्चों? बर्फ नहीं, बर्फ। क्या है? बर्फ। जी। नेक्स्ट, ये क्या है? जी। और नेक्स्ट क्या है? मकई। जी तो प्यारे बच्चों, आज हम इन 3 चीज़ों के बारे में सीखेंगे कि इन तीनों को अरबी में क्या कहते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के वर्ड्स की तरफ। तो पहला था बर्फ। तो बर्फ को अरबी में सलजुन कहते हैं। बर्फ को अरबी में, बर्फ को अरबी में सब बच्चे मिलकर बोले, बर्फ को अरबी में। जी हाँ, बर्फ को अरबी में सलजुन कहते हैं। 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 जी। और दूसरा क्या था? जी, मिठाई को अरबी में हलवयातुन कहते हैं।
मिठाई को अरबी में हलवायातुन कहते हैं। मिठाई को अरबी में हलवायात कहते हैं। मिठाई को अरबी में हलवायातुन कहते हैं। मिठाई को अरबी में हलवायात कहते हैं। जी, मिठाई को अरबी में हलवायातुन कहते हैं। मिठाई को अरबी में हलवायात कहते हैं। बर्फ को अरबी में सलजुन कहते हैं। बर्फ को अरबी में सलजुन कहते हैं। और मिठाई को अरबी में हलवायातुन कहते हैं। मिठाई को अरबी में हलवायात कहते हैं। तो मकई को अरबी में ज़ुरतुन कहते हैं। क्या कहते हैं? दाल, रा और ता, ज़ुरतुन कहते हैं। क्या कहते हैं? जी, मकई को अरबी में ज़ुरतुन कहते हैं। अरबी में ज़ुरतुन कहते हैं। मकई को अरबी में ज़ुरतुन कहते हैं। मकई को अरबी में ज़ुरतुन कहते हैं। मकई को अरबी में ज़ुरतुन कहते हैं। मकाई को अरबी में सूरतुन कहते हैं। बर्फ को अरबी में सलजुन कहते हैं। बर्फ को अरबी में सलजुन कहते हैं। और मिठाई को अरबी में हलवायातुन कहते हैं। और मिठाई को अरबी में हलवायातुन कहते हैं। और मकई को अरबी में ज़ुरतुन कहते हैं। और मकई को अरबी में ज़ुरतुन कहते हैं। याद हो गया सब बच्चों को? जी। तीनों वर्ड कौन सुनाएगा एक साथ? इब्राहिम भाई को दे। बर्फ को अरबी में क्या कहते हैं? सलजुन। जी, और मिठाई को? हलवायातुन। जी, और मकई को? ज़ुरतुन। जी हाँ, माशाअल्लाह। और कोई सुनाएगा? मकई को क्या कहते हैं? ज़ुरतुन। जी, और कोई सुनाएगा? तीनों इनको दे माइक। मिठाई को क्या कहते हैं? हलवायातुन। और मकई को? ज़रातुन। नहीं, ज़ुरातुन। क्या कहते हैं? ज़ुरातुन। जी हाँ, ज़ुरतुन। अच्छा जी, आप सुने। मकई को क्या कहते हैं? ज़ुरतुन। जी हाँ, माशाअल्लाह। क्या कहते हैं? ज़ुरतुन। जी, तो प्यारे बच्चों आइए क्लास पर रिवाइज कर लेते हैं। बर्फ को अरबी में सलजुन कहते हैं। बर्फ को अरबी में सलजुन कहते हैं। मिठाई को अरबी में हलवायातुन कहते हैं। मिठाई को अरबी में सलवातुन कहते हैं। और मकई को अरबी में ज़ुरतुन कहते हैं। और मकई को अरबी में ज़ुरतुन कहते हैं। प्यारे बच्चों ये थे आज के 3 वर्ड्स, तो आपने इन्हें याद भी रखना है, ठीक है? सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, आपने बहुत ही प्यारा सेगमेंट किया। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मदीने की हाजिर नसीब फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है मैनर्स। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों, सेगमेंट मैनर्स के साथ मैं हूँ फुज़ैल अत्तारी। प्यारे बच्चों, गुड मैनर्स में से एक अहम बात ये भी है, हम किसी का मजाक ना उड़ाएं। प्यारे बच्चों, ये बहुत बुरी बात है, इससे दूसरों का दिल दुखता है और किसी का दिल दुखाना बहुत गुनाह की बात है। आमतौर पर हम दूसरों की नकल उतार कर मजाक उड़ाते हैं, किसी के कपड़ों का मजाक उड़ाते हैं, किसी के जूतों के कलर और बस्ते वगैरह के डिजाइन का मजाक उड़ाते हैं। प्यारे बच्चों, ये बहुत गुनाह की बात है। एक लम्हे के लिए आप सोचें कि अगर कोई आपका मजाक उड़ाए तो फिर आपको कैसा लगेगा। आए मजाक उड़ाने वालों का अंजाम सुनते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत के दिन लोगों का मजाक उड़ाने वाले के सामने जन्नत का एक दरवाजा खोला जाएगा और कहा जाएगा कि आओ आओ, तो बहुत बेचैनी और गम में डूबा हुआ इस दरवाजे के सामने आएगा, मगर जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचेगा वो दरवाजा बंद हो जाएगा। फिर एक दूसरा जन्नत का दरवाजा खुलेगा और उसको पुकारा जाएगा, आओ यहाँ आओ। चुनाचे ये बेचैनी और रंजो गम में डूबा हुआ उस दरवाजे के पास जाएगा तो वो दरवाजा बंद हो जाएगा। इसी तरह इसके साथ मामला होता रहेगा यहाँ तक के दरवाजा खुलेगा और पुकार पड़ेगी तो वो नहीं जाएगा। इस तरह वो जन्नत में दाखिल होने से महरूम रहेगा। अल्लाह पाक हमें किसी का मजाक और दिल दुखाने से बाज रखे और हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है क्विज टाइम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस गार में अल्लाह पाक की इबादत किया करते थे? जी, इन्हें माइक दें। गारे हिरा। गारे हिरा। और कोई? जी,
जबले सोर। जबल सोर। और कोई? जी, जो आखिरी में मैंने दे। जबले सोर। जबल सोर। और कोई? जी, जबले सोर। जबल सोर। जिन्होंने जवाब दिया उनका जवाब दुरुस्त नहीं हुआ। आपने जवाब दिया गारे हिरा और आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है। वो कौन सी बरकत वाली किताब है जो हर मुसलमान के घर में होती है? माशाल्लाह। जी, अब्दुल हादी भाई को माइक दें। कुरान मजीद। कुरान मजीद। और कोई? चले सारे मिलके एक बार बता दें। कुरान मजीद जवाब दुरुस्त है। कुरान पाक में कितने सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम के नाम आए हैं? जी जी, आप। 29। और कोई? 4। एक और कोई बता दें। जी, 4। जिन्होंने जवाब दिया है 29 उनका जवाब तो गलत हो चुका है, और जिन्होंने 4 जवाब दिया है उनका जवाब दुरुस्त नहीं हुआ। असल जवाब 1 है। क्या है जवाब? 1। ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आया है। वो कौन है जो लोगों की दुआएं कबूल फरमाता है? अल्लाह पाक। अल्लाह पाक। जवाब दुरुस्त है। अल्लाह पाक ने किन नबी अलैहिस्सलाम की वजह से सब कुछ बनाया? अल्लाह पाक ने किन नबी अलैहिस्सलाम की वजह से सब कुछ बनाया? सारे मिलके। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे नबी आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से अल्लाह पाक ने पूरी कायनात बनाई है, हर चीज़ बनाई है, हर ज़र्रा ज़र्रा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाया है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम का वक्त इख्तिताम पर पहुंच चुका है। तो हम जाते जाते हमजा भाई से एक कलाम के 2 अशार सुनते हैं। तो जी हमजा भाई। वो सरवरे किशवरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, वो सरवरे किशवरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामान रचीती शादी मची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आते, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफ़हात उठ रहे थे, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफ़हात उठ रहे थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे, नई दुल्हन की भवन में काबा निखर के सवरा सवर के निखरा, नई दुल्हन की भवन में काबा निखर के सवरा सवर के निखरा, हजर के सदके कमर के एक दिल में, हजर के सदके कमर के एक दिल में रंग लाखों बना के थे, हजर के सदके कमर के एक